Okay, so for starting this session, welcome to the first session of placement training. So for starting this session will be specifically focused on the CMA campus placement, further process and form filling, what we need to do, what we need not to do. We will be focusing about all these things. But before starting this, I need one student who cleared the both group, uh, registration number and roll number so that I can open that particular person's result and then we will proceed further with the form filling guide and all. Just send me in the chat section. We are starting within 30 seconds. Okay, let us start. So I got one person's roll number with the registration number. Good evening, everyone. Good evening. How are you all? So first of all, let me clear you. This session will be focused on the CMA campus placement form filling, but all of our sessions are not only focused on the campus placement. We will be focusing on the off-campus placement things as well. Some of the things are there that what you need to do in the campus placement and what you need to do in the off-campus placement. So there are differences in some of the things. So we will be covering both these things. Like if you are going to the campus placement, you need to fill the form, then you will be shortlisted by the company, then you need to sit in the interview process. Whereas if you are applying for the off-campus placement jobs, then you need to send a particular mail to the company. You need to learn the mail drafting and everything. So we will be covering that topics as well so that you can be shortlisted. Uh, this first session will be short session, about 1 hour session will be there, and next session will be focused upon the CV preparation and all other things. And after that, your another session of the HR will also be started, which will be taken by the Madhu ma'am. And simultaneously, approximately 3 hours sessions will be there, 2.5 to 3 hours, and daily session timing will be same. And offline sessions will be started from the Wednesday, approximately Wednesday or Thursday. You will be communicated accordingly. Actually, we are having some of the batch runnings which are about to finish within 1 to 2 days. Then your batch will get the space and we will start the offline batches as well. Till then, 1 to 2 session will be in the online mode until some of the other cities students will be moving to the Jaipur as well, so they will be available as well. So who is in this session who will be in the offline? Just tell me that as well. कि अभी कौन ऐसा है जो कि ऑफलाइन में भी होगा? चलिए, let me open a particular result. So 04241056 438 and the roll number is 6281. You will get the OTP as well, so be ready with that as well. Okay, Gunjan is there. Gunjan, you can rename yourself as well. So your name is coming with the name of OnePlus. So first of all, as you can see
at the end application form fill up to 17th August. So 17th August is the last date. So this will be our first step. अगर हमको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो ये वर्क करना पड़ेगा. अबाउट दिस हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, लास्ट में एक लिंक है, उस पर क्लिक करना है. यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस विंडो and you again need to enter the registration number. Then you will get the OTP. OTP सिस्टम पहले नहीं था बट रिसेंटली इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड. ऐसा क्यों करा? क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म उनके फ्रेंड्स फिल कर देते थे, वो भी गलत. हाँ, ब्राम आना चाहते हैं बिहार से. अच्छा, बिहार तो काफ़ी दूर हो गया. मुस्कान ऑफलाइन है, रजत एंड सोमिल और भी कुछ कैंडिडेट्स ऑफलाइन है, वो इस सेशन में अभी प्रेजेंट नहीं है. Just tell me the OTP, Gunjan, so that we can start the session as well. ट्रिपल ए. आप आपका एक्चुअल नेम फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले रीनेम कर लीजिए. आई थिंक रीनेम की परमिशन तो यहाँ से होगी. अगर रीनेम नहीं हो रहा, सो दैट आई कैन कॉल यू फ्रॉम योर एक्चुअल नेम. आई ट्राइड टू लॉग इन, इट इज शोइंग एज मोबाइल नंबर इन ईमेल आईडी इज नॉट अपडेटेड. लेट अस सी यहाँ पे होता है कि नहीं. पर्टिकुलरली वी आर वेटिंग फॉर द ओटीपी. डिड यू गॉट द ओटीपी, गुंजन? ओके, इट्स 581470. सो दिस इज द फॉर्म. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल. देखिए, इस फॉर्म के बारे में हमें डिस्कस करना है कि ये फॉर्म क्या होता है, इसमें कैसे प्रोसीड करें. इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट मी टेक दी नोटेशन. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, सो यू कैन सी दिस इज द फॉर्म. मैं इस पे डिटेल अभी बात करने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि इस फॉर्म के अंदर जो है आपकी बेसिक डिटेल है. आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ गया है. स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई है तो उनको पीएसयूज में प्रेफरेंस मिलता है. कैटेगरी इज देयर. कैटेगरी को आप अगर आप देखेंगे तो देर इज EWS, जनरल, SC, ST, OBC, क्रिमिलेयर, नॉन क्रिमिलेयर. सर, डज कैटेगरी affects our shortlisting or placement opportunities? Yes, in some companies. So PSU companies में category means if you belongs to the economic weaker section, SC/ST section, तो they get the benefit. सो पर्टिकुलरली होता क्या है कि PSU कंपनीज में इन पर्टिकुलर कैटेगरीज की सीट्स वैकेंट है. एंड एज पर द गवर्नमेंट्स नॉर्म एंड रिजर्वेशन, इन्हें ये पर्टिकुलर सीट्स फिल करनी होती है. तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फिल कर रहे हैं, OBC में इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बट फिर भी आप सर्टिफिकेट रखिए. और जनरल को तो कुछ है नहीं. तो यू शुड बी रेडी विद दीज सर्टिफिकेट्स, क्योंकि ये आपके लिए काम आएंगे. अभी पूरा टाइम है प्रॉपरली. तो अभी फॉर्म के साथ में ये नहीं चाहिए, बट विद इन 1 मंथ इसको प्रिपेयर कर लीजिए. सो दैट जब आप कैंपस प्लेसमेंट में एक्चुअली जाएंगे तो आपके ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स रेडी हो. और इन पर डिटेल अभी मैं डिस्कशन भी करूंगा. क्वालिफिकेशन की डिटेल्स बिल्कुल सिंपल है. बीइंग ए क्वालिफाइड CMA मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है. आपको 10th-12th के पासिंग परसेंटेज डालने, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंटर करना है. वीडियो में कुछ लैग आ रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है. बाकी लोग एक बार मुझे बता दीजिए. ओके, मैं नेटवर्क चेंज कर देता हूँ. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, इट शुड बी बेटर नाउ. अब मुझे बताना. राम एंड प्रांजल, जस्ट टेल मी, इज इट ओके नाउ? ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट जहाँ. ओके, अब बेटर हो गया होगा. जस्ट टेल मी कि अब मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक ठीक से पहुंच रही है, सचिन एंड अदर पर्सन्स. आई हैव चेंज द नेटवर्क, इसलिए वो एक बार रीलोड हुआ था. ओके, अब जिस पर हमको फोकस करना है, ICMI क्वालिफिकेशन. यहां पर देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिख रहे होंगे. ये 20 अटेम्प्ट्स तक का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ICMI ने.
सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का रोल क्या है? पहले आई थिंक यू नी यूज टू एंटर इट मैनुअली, बट यहाँ पर अब ऑप्शन आ चुका है, तो यू नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन हियर। आई डोंट नो यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, अच्छा इंटरमीडिएट के लिए दे रखा है, फाइनल के लिए तो देना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? लॉजिकली इस कैंपस प्लेसमेंट में जो क्लियर हुए हैं इस अटेम्प्ट में पर्टिकुलरली, वही एलिजिबल है। तो फाइनल का ईयर ऑफ पासिंग क्यों पूछ रहा है? आई डोंट नो। इंटर का पूछ सकते क्योंकि इंटर किसी का पहले भी हुआ, बट फाइनल का ईयर ऑफ पासिंग पूछ ही नहीं सकते। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी होता है, सर आई हैव क्लियर्ड माई CMA इन द लास्ट अटेम्प्ट, आई वांट टू अपीयर इन दिस कैंपस प्लेसमेंट, कैन आई डू सो? नो, यू कैन नॉट डू सो। सर कैन आई स्किप माई दिस पर्टिकुलर कैंपस प्लेसमेंट एंड आई वांट टू अपीयर इन द अपकमिंग कैंपस प्लेसमेंट, कैन आई डू सो? नो। आपके पास होने के बाद में जो जस्ट सब्सिक्वेंट कैंपस प्लेसमेंट होता है, यू कैन ओनली अपीयर इन दैट कैंपस प्लेसमेंट। तो यहां पर अटेम्प्ट कैसे काउंट होते हैं? अटेम्प्ट के लिए मैं सीधा सिंपल बता दूं, यू हैव फिल्ड द एग्जाम फॉर्म, यू हैव अपीयर्ड इनटू द एग्जामिनेशन इन एंड यू गॉट फिल्ड, दैट इज एन अटेम्प्ट। सपोज you filled the exam form but you did not appear into the examination process, then attempt will not be counted. Attempt will only be counted if you appeared into the examination and got failed. Even though you appeared for the one paper only in entire group, then also attempt will be counted. Absent is not counted as an attempt. Then here you can see rank in inter and rank in final. You need to fill your ranks, that whatever rank you have. Final ranks matters most. Final की रैंक ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट। उसके बाद में प्रैक्टिकल, ये सब मैं डिस्कस भी करूंगा, अभी तो हम ऊपर से देख रहे हैं, फिर इन डेप्थ इन पर बात करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। सो सर आई डिड ट्रेनिंग फ्रॉम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आई, ड्यू टू वेदर थोड़ा सा नेटवर्क में इश्यूज आ रहा है, क्योंकि बहुत जो है मौसम यहाँ पर, वेदर जो है पर्टिकुलरली जयपुर में ख़राब है, तो आई थिंक उसकी वजह से इशू। अदरवाइज वाईफाई है, सब कुछ बेटर है, सिग्नल बेटर है, सब कुछ अदर डिवाइसेस वर्क कर रहे हैं, बट आई डोंट नो यहाँ क्यों इशू आ रहा है। चलिए, आई थिंक आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, सो यू नीड टू बियर दैट। मैं देखता हूँ इसमें क्या इशू है। एज सच तो वैसे कोई इशू नहीं है नेटवर्क का, बट 1 to 2 टाइम्स आ गया है, तो इसको चेक करना पड़ेगा क्या है। Okay, now next thing. Name of the organization I was talking about, sir. I did articleship from more than one organization. What I need to do, what I need to mention. So attempts का रिपीट कर दीजिए। attempts का बड़ा सिंपल है सचिन। attempts का क्या है? यू हैव अपियर्ड इनटू द एग्जामिनेशन एंड गॉट फेल्ड। फेल होना ही अटेम्प्ट है, अदरवाइज अटेम्प्ट काउंट ही नहीं होता। तो अगर आप एग्जाम में अपियर हुए थे और फेल हो गए हैं, देन ओनली अटेम्प्ट विल बी काउंटेड, अदरवाइज नो अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। तो उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना है अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मैं इसमें छोटा सा चेंज और कर देता हूँ, अब आपको और बेटर दिखेगा। तो अटेम्प्ट के बारे में मैंने सिंपल सा बता दिया। फेल होना अटेम्प्ट है, अदरवाइज कोई अटेम्प्ट नहीं है। एब्सेंट रहना इज नॉट एन अटेम्प्ट। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेक्शन। सो व्हाट यू नीड टू फिल ओवर हियर। आपने कहाँ से ट्रेनिंग करी, कब से कब तक करी, बड़ी बेसिक है इनके बारे में हम इन डेप्थ अभी बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली। डिटेल्स ऑफ वर्क अंडरटेकन। देखिए, अगर आप अपना CV बनाएंगे तो आप यहाँ पर जो भी आपने वर्क करे होंगे ना, वो आप मेंशन करेंगे। तो CV पहले प्रिपेयर करेंगे हम, उसके बाद में ही फॉर्म फिल करना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू मेंशन ओवर हियर। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब से कब तक, किस मंथ से किस मंथ तक आपने, ईयर कौन सा था, 1 year 2 months, 1 year 6 months, इस टाइप से। किसी का ऑडियो ऑन है क्या? मैं सबको अनम्यूट की परमिशन भी हटा दी है मैंने, आई थिंक अपनी होगा। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स का, वो ये आता है, सर मैंने 2-3 प्लेसेस से आर्टिकलशिप करी है, अब मुझे क्या फिल करना है? तो जो आपकी मेन आर्टिकलशिप आपको लगती है कि जिससे आपको शोकेस करना है, उसको यहाँ फिल करो। मेन आर्टिकलशिप जो लगती है उसको यहाँ फिल करो। और जो आपको लगता है सेकेंडरी आर्टिकलशिप है, उसको यहाँ नीचे प्रीवियस एक्सपीरियंस में दिखा सकते हो। यू कैन सी द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑप्शन ओवर हियर। तो आप यहाँ उसको शो कर सकते हो।
करंट एक्सपीरियंस में आएगा इफ यू आर वर्किंग राइट नाउ एज वेल, अगर आप अभी भी वर्क कर रहे हैं तो आएगा। बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, कंपनी इमीडिएट ज्वाइनिंग मांगती है। सो कंपनी डिमांड्स इमीडिएट ज्वाइनिंग, सो मुझे लगता है कि ये बताना थोड़ा सा फ्रूटफुल नहीं है फॉर कैंपस प्लेसमेंट पर्पस। ऑफ कैंपसेस में इतना कोई इशू नहीं आता है। उसके बाद में प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में ये सेक्शन उनके लिए है जहां जिन्होंने एक से ज्यादा प्लेसेस से ट्रेनिंग करी है। वीडियो लैगिंग, एक, चलिए 1 मिनट होल्ड करिए, मैं इसका नेटवर्क का चेंज कर लेता हूँ सो दैट ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं इसका और अल्टरनेट सॉल्यूशन देखता हूँ। जस्ट वोट वेट फॉर अ सेकेंड, इसका कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन देखते हैं। यस, जस्ट वेट वो, इट इज ड्यू टू द वेदर। एक्चुअली इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड रेनिंग हैवीली, आई कैन सी फ्रॉम हियर, yes, in the camera, so therefore it is creating issue. Is it okay now? अभी ठीक है? Is it okay now? So you need to bear with that, particularly weather की वजह से। नॉर्मली होता नहीं है, आज हो रहा है। ओके, सो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में व्हाट यू नीड टू डू, प्रीवियस एक्सपीरियंस के अंदर आपको, अगर आपने मोर देन वन प्लेसेस से आर्टिकलशिप करी तो सेकेंडरी आर्टिकलशिप को दिखाना, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, यू आर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो उसको भी यहाँ पर दिखाना होगा आपको। यू कैन सी यहाँ पर ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर, स्टूडेंट टाइप एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर। ये सर क्या चूज करना है? अगर आपने सिर्फ आर्टिकलशिप करी है, जॉब नहीं करी है, तो फ्रेशर। अगर आपने जॉब भी कर रखी, यू हैव द प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ जॉब एज वेल, देन यू नीड टू सेलेक्ट एक्सपीरियंस्ड। देन यू नीड टू अपलोड योर सीवी, मेक श्योर लिख के रख लेना इस चीज को, राइट इट डाउन। You need to upload the CV in PDF format only. Although other formats are also allowed. You can see JPG, JPEG, DOC format, but PDF format only. Another thing is that अभी आपको आपके जो बैच है उसके चैट सेक्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगी, वहां पर आपको सीवीज वेरिफिकेशन के लिए भेजने हैं। उस पर भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही सीवी भेजना है। So you need to share CVs only in PDF format only. Do not share in any other format. So for the checking purpose जब आप भेजेंगे सीवी, आपको ईमेल आईडी यहाँ पर अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, आपके बैच के अंदर दूंगा, चैट सेक्शन के अंदर, वहां पर जब सीवी वेरिफिकेशन के लिए भेजे तो भी मेक श्योर सीवी जो है पीडीएफ फॉर्मेट में। देन देर इज द सेक्शन ऑफ, यू कैन सी अपलोड फोटो। अपलोड फोटो में प्रोफेशनल फोटो यूज करनी है। प्रोफेशनल फोटो, आजकल तो एआई का टाइम है, सो यू कैन इजीली प्रिपेयर दी फोटो। लैग अभी भी हो रहा है क्या? जस्ट टेल मी कि क्या अभी भी लैग हो रहा है क्या? मैं मेरे फोन के हॉट, ओके, अब मैंने थोड़ा सा नेटवर्क चेंज करके मैं खुद के मोबाइल के फ़ोन के हॉटस्पॉट से ट्राई कर रहा हूँ। लेट अस सी कि ये नेटवर्क मैंने थ्री नेटवर्क चेंज कर लिए। वे हैव मल्टीपल वाईफाई, बट सभी प्रोवाइडर, वेदर इट इज़ टाटा, वेदर इट इज़ जियो, और वेदर इट इज़ एयरटेल, सभी में ये इशू हो रहा है particularly. So I think it should be better now. I have connected with the mobile phone hotspot. ओके, नेक्स्ट हम जल्दी से उधर जाने वाले हैं। हो सकता है ये यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ लैग कर रहा हो, बाद में ना करे। यू कैन सी फोटो एंड सिग्नेचर। तो फोटो को व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक इट प्रोफेशनल। आपकी नॉर्मल फोटो को भी यू कैन मेक द प्रोफेशनल फोटो।
आई थिंक ये आपको आता है या नहीं आता, जस्ट टेल मी। कैन यू मेक योर नॉर्मल फोटो इनटू द प्रोफेशनल फोटो? क्या आप लोगों को आता है या मैं बताऊं कैसे बनाते हैं? जस्ट टेल मी दिस। आपको क्या करना है, चैट जीपीटी का अगर आपका नॉर्मल सा भी अकाउंट है, फ्री भी अकाउंट है, तो जस्ट डू वन थिंग। आपकी फोटो लीजिए जिसमें आपकी कुछ नॉर्मल पर्टिकुलर फोटो होनी चाहिए। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी टेल यू, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जस्ट टेल मी, क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? मुझे एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए। ओके, सो आपको चैट जीपीटी पे आना है। फ्री वाला अकाउंट हो तो भी कोई इशू नहीं है, फ्री अकाउंट से भी हो जाएगा। ओके, मैं हर्ष रिपीट कर दूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क में हो गया हो। यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन आएगा, प्लस के आइकन पर जाना है, अपलोड फोटोज एंड फाइल्स। ठीक है, यू नीड टू सेलेक्ट योर पर्टिकुलर फोटो, जस्ट लाइक मैं अब मेरी कोई फोटो अगर मुझे इसमें दिखती है तो लेट मी सेलेक्ट। मैंने मेरी एक फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी है ठीक है। आपको दिख रही है क्या, ये स्क्रीन दिख रही है क्या चैट जीपीटी वाली? एक बार मुझे ये बताइए, चैट जीपीटी वाली स्क्रीन दिख रही है क्या? मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर दिख रही है तो ठीक है। दिख रही है ना? ओके, ये फोटो अपलोड करने के बाद मेक दिस फोटो प्रोफेशनल फॉर माय सीवी पर्पस। आई विल यूज इट फॉर माय सीएमए प्लेसमेंट सीवी। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट दे दिया, इसमें कोई बहुत एक्सपर्ट होने की नीड नहीं है। ये मेरी पर्टिकुलर फोटो है, इसके अंदर मेरे पास ट्रॉफी भी है, तो मैं उसको हटवा देता हूँ। रिमूव दी ट्रॉफी फ्रॉम माय हैंड्स। ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया एंड अब ये फोटो जो है वो जनरेट कर रहा है। यू कैन सी कि मैंने क्या फोटो अभी दी है पर्टिकुलरली। एरर कुछ आ गया, लेट्स ट्राई अगेन। सो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, लेट्स सी कि क्या प्रोसेस होता है। अंटिल देन आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन सेंड ओवर हियर एज वेल। जब तक हम वेट कर रहे हैं, आपका कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क ओवर हियर। फिर हम हमारे पर्टिकुलर सेशन पर आएंगे जो पीपीटी से हम इस फॉर्म को इन डिटेल देखने वाले हैं। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर करने वाला हूँ जो आपके माइंड में आ भी नहीं रहे होंगे, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिग्नेचर तो नॉर्मल से है, आपको क्या करना है, नॉर्मल सा सिग्नेचर करना है एक पेज के ऊपर। फोटो क्लिक करनी है, देन उसे अपलोड करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। और जो भी एआई फ्रेंडली नहीं है, जिनको भी पता नहीं है कैसे करना है, यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है। फाइनल स्टेप पर आ जाए तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से बनाएगा। आई थिंक बना लेंगे। सर सिंगल सिंगल ग्रुप दिया है तो कैसे काउंट होगा? सिंगल ग्रुप वाइज अटेम्प्ट आपके यहाँ पे वैसे भी ग्रुप वाइज ही पूछ रहा है। ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, तो इस तरीके से पूछ रहा है। सो दिस इज दी अनदर फोटो। अब आप इसमें सूट का कलर चेंज करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सपोज मैं इनको बोलूँ कि मेरा ब्लैक सूट में दे दीजिए इमेज, तो वो ब्लैक सूट में दे देगा। सो इज इट क्लियर कि आपको कैसे प्रोफेशनल देखिए ये मेरी फोटो में कैसी थी, और इस फोटो को चेंज करके इस तरीके से कर दिया है। और यहाँ पर मैं सूट का कलर चेंज कर सकता हूँ, ये सब कुछ कर सकता हूँ। और आप, और इसको जब तक आप सेटिस्फाई ना हो, अगेन एंड अगेन बोल सकते हैं कि कुछ भी चेंज करना हो। तो क्या ये आपको क्लियर है? जो भी पूछ रहे थे सर बता दीजिए, फोटो को मुझे कैसे प्रोफेशनल बनाना है। अच्छा, ये तो मेरी नॉर्मल फोटो थी, सपोज आपकी कोई बिल्कुल नॉर्मल सी फोटो है, सूट में भी नहीं है, तो भी वो सूट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन वो नेचुरल लगनी चाहिए, ध्यान रखना।
जहां से आप एएसटीपी करेंगे प्रांजल, वहीं से मिनी कैंपस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रियंका, क्या बताना है एक बार मुझे बताएंगे, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको क्या नीड है पर्टिकुलरली, व्हाट यू वांट टू नो अगेन। फोटो तो बिल्कुल सिंपल है, ये जो आप कोई भी फोटो अपलोड करिए, प्लस में जाइए, यहाँ पे फोटो एंड वीडियो अपलोड का ऑप्शन आएगा, ये टाइप कर देना जो मैंने टाइप करा है। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मेक दिस फोटो प्रोफेशनल फॉर माई सीवी पर्पज, आई विल यूज इट फॉर माई सीएमए प्लेसमेंट सीवी, रिमूव दी ट्रॉफी। ट्रॉफी आपको ये नहीं लिखना है क्योंकि आपके हैंड्स में ट्रॉफी होगी नहीं। सपोज करिए आपकी नॉर्मल फोटो है, आपकी सूट में फोटो हो, ये जरूरी नहीं है, मेरे पास तो थी। तो इसको प्रोफेशनल बनाने को बोलिए एंड इसमें लिख दीजिएगा यूज है प्रॉपर प्रोफेशनल सूट। सूट का जो भी कलर आपको ठीक लगता है, यू कैन राइट ब्लैक सूट, नेवी ब्लू सूट, ब्लू सूट, यही कलर्स है जिनमें आपको रहना है। डार्क ब्राउन, ये कलर से जो प्रोफेशनली अच्छे लगते हैं। और आपके प्लेसमेंट पर्पज के लिए भी जब आप सूट ले पर्टिकुलरली, तो भी यही कलर्स को आपको चूज करना है। सर, माई ट्रेनिंग इज एग्जाम ड्यू टू माई पास्ट एक्सपीरियंस, सो व्हाट शुड आई राइट इन आर्टिकल? यू कैन skip the articleship column and Somil, you can mention your experience in the experience section. Let me show you where. अभी कुछ क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि एक्सपीरियंस सेक्शन का बता दीजिए, जस्ट फोकस ओवर हियर। एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे, तो अगर आपने ट्रेनिंग करी है तो यू नीड टू मेंशन ऑर्गेनाइजेशन नेम ओवर हियर, एंड आपकी जो भी ट्रेनिंग के वर्क्स है। अब ट्रेनिंग के वर्क्स कैसे लिखने हैं, अभी आपको सब कुछ नहीं करना, इस पर भी मैं सेशन लूंगा, इस पर भी मैं बताऊंगा कि ट्रेनिंग के वर्क्स को कैसे शोकेस करना है। ऑल्दो यू आर हैविंग नॉलेज, किसी को नॉलेज ही नहीं है, सर मैंने बहुत वर्क करा, मैंने डमी करी, अब सीख रहा हूँ। तो अभी जो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करिए, आपके नियर बाय में कोई भी CA CMA को फाइंड आउट करिए, और मॉर्निंग में 9 या 10 o'clock से लेके 3 o'clock तक एटलीस्ट उनको बोलो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊंगा, मुझे वर्क सीखना है जस्ट। और जाइए और वर्क सीखिए अगर आपने नहीं सीखा है तो। अगर आप उसमें भी थोड़ी जर्नल एंट्री, रिसिप्ट, पेमेंट वाउचर, GST, इनकम टैक्स के बेसिक टास्क सीख सीख लेते हैं तो दैट्स ओके, कि आपको कुछ आता है। और फिर मैं उसे बताऊंगा इसको कैसे अपन ब्रशअप करेंगे और कैसे शोकेस करेंगे स्पेसिफिकली। इसके बाद में आप देखिए अदर प्रोफेशनल डिग्रीज, अगर आप कोई CA CS की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो बताना है। करंट एक्सपीरियंस, अगर आप वर्किंग है तो मुझे लगता है कि आप वर्किंग है तो भी ना बताएं, क्योंकि कंपनीज इसमें इशू क्रिएट करती है तो भी इसको नहीं दिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी कंपनी में बात करके रखें, वो वहाँ से NOC ले ले। अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो फिर आपको करना पड़ेगा ये, अगर छोटी कंपनी ऐसे ही कुछ है तो वो कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट टाइप में एक्सपीरियंस और फ्रेशर में से क्या ले, अगर आपकी ट्रेनिंग एग्जम्प्ट हो गई थी, आपने जॉब करी है कहीं पे, तो फिर आपको एक्सपीरियंस लेना है। आपने नॉर्मल आर्टिकलशिप करी है जो कि एज करिकुलम करनी चाहिए, तो आपको फ्रेशर लेना है। अपलोड CV हमने बात कर ली, अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, नॉर्मल थिंग्स है। अब यहां पर देखिए क्या है, फर्स्ट सिटी मींस आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप कहाँ से ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ASTP ट्रेनिंग, सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। इन ऑप्शंस के अलावा आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। सर अदर लोकेशन सेलेक्ट कर लूँ तो अदर लोकेशन में फिर आपसे पूछेंगे कौन सी लोकेशन, और वहां पर एटलीस्ट अगर 30 CMAs होते हैं, 30 30s, तो उस लोकेशन पे भी ASTP हो सकती है। अदरवाइज ये जो लिस्ट में दी गई है उन्हीं लोकेशंस पर होती है। और फर्स्ट प्रेफरेंस में वही रखना जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है अदर लोकेशन पे बहुत रेयर होता है बट शिफ्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स को। जस्ट लाइक कि आपको जयपुर से करनी है तो जयपुर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जयपुर में या अहमदाबाद में, पुणे में, बैंगलोर में ASTP करने का बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ पे मिनी कैंपसेस भी मिलते हैं, चांसेस मिलती है वहाँ पर। बट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में ये चांसेस नहीं मिलते हैं, वहाँ मेन कैंपस होता है, वो सबको चांस मिलते हैं। यहाँ सेकंड प्रेफरेंस ले लेना है आपको, जस्ट सपोज क्या है, चूज दिल्ली एज सेकंड प्रेफरेंस, कि अगर मेरा जयपुर में नहीं हो पाया तो। बट वो होता नहीं है, आपको फर्स्ट सिटी में ही मिल जाता है। देन दिस इज द सेपरेट थिंग, इंटरव्यू लोकेशन में ओनली 4 लोकेशन ही आ रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जैसा मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि साउथ और सेंट्रल इंडिया से नीचे वाले जो लोग हैं वो चेन्नई और कैलकाटा में से सेलेक्ट करें, या सेंट्रल वाले जो गुजरात एंड महाराष्ट्र वाले हैं वो तो मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं।
और जो कैलकाटा वाले हैं या उधर के लोग हैं उनको उसी रीजन में सेलेक्ट करना चाहिए, इट विल बी बेटर फॉर देम। बट जो पंजाब हरियाणा यूपी इधर के साइड के लोग हैं, राजस्थान, उनको दिल्ली और मुंबई में से कुछ सेलेक्ट करना चाहिए। दोनों ठीक लोकेशन है। सब लक पे डिपेंड करता है, कभी कहीं कंपनी ज्यादा आ जाती, कभी कहीं कंपनी ज्यादा आ जाती। आर यू रेडी टू रिलोकेट वाला एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट में देखेंगे आप कि यहाँ पर बिल्कुल लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे लास्ट के अंदर। क्या आप रिलोकेट होना चाहते हैं? इसमें ओनली यस ही टिक करना है, नो टिक नहीं करना है। अगर आप नो टिक कर देंगे तो कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये ध्यान रखिए, आर यू रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया में यस टिक करना है, अदरवाइज कंपनीज विल नॉट शॉर्टलिस्ट यू। सो ये तो बहुत बेसिक बेसिक डिटेल्स थी। इसके अंदर ध्यान में रखने वाली चीज क्या है? एक तो कैटेगरी के लिए अपने प्रिपरेशन कर ले, अगर डॉक्यूमेंट है तो। आर्टिकलशिप में वर्क को अच्छे से मेंशन करें, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है वो मेंशन। अदर प्रोफेशनल डिग्रीज अगर है तो मेंशन कर दे, बट नहीं है, सी ए सी एस नहीं करा है तो मेंशन नहीं। करंट एक्सपीरियंस अगर आप वर्किंग है तो वो यहाँ आता है। प्रीवियस एक्सपीरियंस मींस आपने कहीं पहले वर्क करा है, बट किसी ने दो अलग अलग जगह से आर्टिकलशिप करी, यू डिड योर आर्टिकलशिप फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयर, देन यू नीड टू मेंशन योर प्राइमरी आर्टिकलशिप इन द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेक्शन एंड सेकेंडरी आर्टिकलशिप इन टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस सेक्शन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी थिंग्स टू रिमेंबर। क्या क्या हमको ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें हमें देखनी है, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। आई थिंक नेटवर्क इज फाइन नाउ, जस्ट कंफर्म मी अभी नेटवर्क ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी आए वो भी मैं ले लेता हूँ। तो रजिस्टर्ड मेल आईडी और रिज्यूम मेल आईडी डिफरेंट है तो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं होगा। आप जो सीवी में मेल आईडी लिख रहे हैं, कोई इशू नहीं होगा। ये मैं आपको अभी बताने वाला भी हूँ कि मेल आईडीज का क्या करना है। सर व्हाट इज मिनी कैंपस? वर्णिका, मिनी कैंपस इज दैट कि आपने मेन कैंपस तो दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में होगा। सपोज यू डिड नॉट गॉट सेलेक्टेड इन दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, वट एवर द लोकेशन यू चोज। बट उसके बाद क्या? उसके बाद में भी कुछ लोकेशंस ऐसी है लाइक जयपुर, अहमदाबाद एंड पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद। देर आर चांसेस कि वहां पर भी कैंपस प्लेसमेंट होता है, सेकंड फेज वहां पर भी कुछ कंपनीज आती, एंड यू गेट द अपॉर्चुनिटी ओवर देयर एज वेल। अनदर क्वेश्चन इज दैट, हाई सर, आई वर्कड एज फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट and did research and prepare cash flow and balance sheet forecasting of the expense. Yes, you can mention that it's a good experience, आप मेंशन कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स में हम बात करने वाले हैं। ये देख रहे हैं आप स्टेप्स, सीढ़ियाँ जो चढ़नी है आपको। फॉर्म फिलिंग के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपका लाइफ साइकिल होने वाला है। प्री फ्लाइट डैशबोर्ड मतलब आपको क्या क्या पहले से प्रिपेयर रखना है अभी आज की डेट में। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से पूरा सेशन देखना एंड तक। तो जो भी मैं चीज़ें बताऊं, जो भी थिंग्स मैं बताऊं उनको प्रिपेयर कर लेना। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एंड टाइम पर जागते हैं और एंड टाइम पर प्रिपेयर करने के लिए जाते हैं, वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानेंगे, कैसे एंटर करना है, क्या करना है, वो मॉडल के हैं। रिकॉर्ड्स को फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करना है। देन शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, ये सब कुछ कंपनी का प्रोसेस होता है। तो कैंडिडेट के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल के अंदर देखें तो अभी क्या है, एज ऑन डेट हमारे कंट्रोल में क्या है। अच्छा, ये जो भी पीपीटी मैं यूज कर रहा हूँ, ये आपको जो भी पीपीटीज यूज होगी, आपके बैच जो सीएमए कार्ट वाला बैच है उसके अंदर अपलोड हो जाएगी स्टडी मटेरियल सेक्शन में, तो आप एक्सेस कर पाएंगे। बट आपको जो भी चीज़ें काम की लगती है, यूजफुल लगती है, उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार इनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते आप। ठीक है, तो नोट डाउन भी करते रहना अपने शॉर्ट नोट्स। डिटेल्ड पीपीटी हमेशा नहीं देखी जा सकती। सो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। कुछ पीपीटीज ऐसी होगी जो आपको शेयर नहीं करी जाएगी, नोट डाउन कराई जाएगी, क्योंकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, हम हमारे लिए, आप एज ए स्टूडेंट ही आज की डेट में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो पीपीटी को फिर देखते ही नहीं और वो ना नोट डाउन करते, फिर वो उनको रिकॉल ही नहीं होता है। तो इसलिए भी चीज़ें ध्यान में रखनी। देखिए, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मींस फॉर्म फिल करेंगे हम। एलिजिबिलिटी चेक की जरूरत नहीं। एलिजिबिलिटी चेक कैसे होगा भाई? हमारी चीज़ें क्या क्या है, हमारे अटेम्प्ट्स कितने हैं, ये एलिजिबिलिटी में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा
सीएमए है कि नहीं है, ऑब्वियस सी बात है सर, सीएमए तो मैं हूं तभी तो फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ठीक है। और फिर कुछ आपकी कैटेगरी हो गई, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, ये सारी चीजें से जो है एलिजिबिलिटी चेक होता है, ये आपको फिल करना है। देन एप्लीकेशन सबमिट हो गई। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी, कुछ पीपीटीज भेजेगी आपको। शॉर्टलिस्टिंग कब से आती है सर, ये भी क्वेश्चन होता है। आपकी जब एएसटीपी हो जाएगी उसके बाद से आती है, उसके पहले नहीं आती है। कंपनीज खुद आपको मेल करती है शॉर्टलिस्टिंग के, उसके साथ आपको पीपीटी भेजती है, या असेसमेंट टेस्ट लेती है वो भी भेजती है। उसके बाद में इंटरव्यू। अच्छा, आपको एक वैकेंसी के बारे में पता है क्या, मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में दिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली बताइए, और भी एक दो वैकेंसीज मैंने शेयर करी। डू यू नो अबाउट दीज वैकेंसीज, ये वैकेंसीज के बारे में आपको पता है कि नहीं है? जस्ट टेल मी। तो इट्स अ गुड वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इस पे पर्टिकुलरली मैं ट्राई कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा। जो इस कंपनी में ऑलरेडी प्लेस्ड है, मैं उनको लेकर के आऊंगा आपके इसी सेशन में। हम उस वैकेंसी को प्रैक्टिकली पर्सनली कवर करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो ऑलरेडी उस कंपनी के अंदर है, तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार आए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो है, और वो जो है इस पर्टिकुलर सेशन को ले और आपको बताए कि रिटर्न एग्जाम में क्या पूछेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्लियर करा हुआ है, ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो वो एक अच्छा एड ऑन एडवांटेज हो जाएगा। देन उसके बाद में इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन एंड जॉब ऑफर आपको मिलेगा। तो इंटरव्यू जो प्रोसेस है वहां तक पहुंचने में के लिए पहले शॉर्टलिस्टिंग होनी पड़ती है। हर एक कैंडिडेट जिसने पास कर लिया तो जरूरी नहीं है कि उसको सिलेक्शन हो ही जाए। शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जीडी भी होते हैं, रिटन टेस्ट भी होते हैं। ये सब होने के बाद में आप फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो सिर्फ पास होना मीन सिलेक्शन नहीं है। एआई वाले की लोकेशन अभी कंफर्म नहीं है, ये ऑल ऑल ओवर इंडिया होती है। ऑल ओवर इंडिया होती है ये। ओके। प्री फ्लाइट डैशबोर्ड देख ले। अब हम, अब यहां से सपोज करिए मैं आपकी जगह पर हूं, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये रेडी कर लो। अब इसमें मुझे समझाने का कुछ नहीं है, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि अ, आप सीएमए बन चुके हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सीएमए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल आपके पास में होनी चाहिए, मेंबरशिप डिटेल। सर मेंबरशिप कब मिलती है, और क्या ये यूजफुल है, क्या क्वेश्चन ये पूछते हैं। यस इट इज यूजफुल। काफी सारी कंपनीज ऐसी है जिनमें मेंबरशिप नंबर मांगा जाता है, स्पेशली पीएसयू में। अगर आपको पीएसयू में जाना है तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। प्रोविजनल मेंबरशिप भी देता है आईसीएमआई, तो यू कैन टेक दी प्रोविजनल मेंबरशिप एज वेल। उस प्रोविजनल मेंबरशिप के बेसिस पर पीएसयूज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डू टेक दी मेंबरशिप, मेंबरशिप लेना जरूरी है। एक एग्जाम थी ग्राउंड स्टाफ वाले की, चलिए सचिन वो डिस्कस करेंगे। यस, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपको आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपके किसी सीएमए से बात करिए, सीनियर सीएमए से बात करिए, ही विल टेल यू कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं। इस ईयर इलेक्शन है, मुझे लगता है इजीली मेंबरशिप दी जाएगी, मतलब नेक्स्ट ईयर है। तो आईसीएमआई वांट्स के मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपके कोई प्रैक्टिसिंग सीएमएज एंड ऑल है, तो नोन है, तो उनसे बात करिए, दे विल हेल्प यू आउट। अकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लाइक 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में मोस्टली बीकॉम वाले होते हैं, ये रेडी रखने हैं। मार्कशीट्स एंड ऑल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये थिंग्स आपके पास में होनी चाहिए। सर ओरिजिनल, यस ओरिजिनल, ओरिजिनल ही होनी चाहिए। मेक श्योर। सीएमए एग्जामिनेशन डिटेल्स मीन सीएमए का रिजल्ट आपके पास में होना चाहिए। जो सीएमए का रिजल्ट है आपके पास में वो होना चाहिए, जो भी ओरिजिनल मार्कशीट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके आइडेंटिटी, आधार कार्ड एंड ऑल जो है वो भी आपके पास में होने चाहिए। मार्क्स परसेंटेज होना चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई वेरीफाई करने का तरीका नहीं है। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि ये कोई जनरली वेरीफाई नहीं होता। अब आईसीएमआई ने कोई वहां पर जाकर के तो वेरीफाई नहीं होता, फॉर्म के थ्रू कुछ बैक एंड पर वेरीफाई होता है, तो मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता। होता ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, इसके बारे में मैं कहीं से भी डिनाई नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। सब मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या आपके पास में होने चाहिए। सर्टिफिकेट, सर मेरे पास T1 है, या T4 है, T5 है, इज इट ओके? यस ओके, ये भी है तो चलेगा। और अगर आपने
कहीं पे जॉब करिए तो आपके पास में उसके लेटर हेड पे, कंपनी के लेटर हेड पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डिजिटल असेट में आपके पास रिज्यूम और सीवी होना चाहिए, जिसको हम बनाएंगे एटलीस्ट 1 to 2 days लगेंगे। जल्दबाजी ना करें, सीवी को एटीएस फ्रेंडली भी बनाना है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो इसलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आपकी फोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए, कोई भी नॉन प्रोफेशनल फोटो लगा के सीवी वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजेगा मुझे, मेक श्योर। रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स का मीन्स क्या है? जब हम सीवी बनाएंगे, जब मैं सीवी पर डेडिकेटेडली बात करूंगा, नेक्स्ट सेशन में मैं सीवी पर ही डेडिकेटेडली बात करूंगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जस्ट सपोज कहीं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है, जस्ट सपोज आपने डिबेट में पार्टिसिपेट करा है, जस्ट सपोज आपने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है, या क्रिकेट में पार्टिसिपेट करा है, या वॉट एवर द थिंग, आपने कहीं भी पार्टिसिपेट करा है एंड आपके पास में उसका सर्टिफिकेट है, जस्ट सपोज आपने ब्लड डोनेशन कराया, तो उन सर्टिफिकेट को एक प्लेस पर गैदर कर लीजिए, उसका भी काम करना है। तो ये सब क्या है? ये प्री फ्लाइट डैशबोर्ड का मतलब है कि अभी हमारी फ्लाइट कैंपस प्लेसमेंट की, हम उसमें चढ़ने वाले हैं, और उस फ्लाइट में चढ़ने से पहले यू शुड बी हैविंग दीज। सो ऑन बोर्डिंग से पहले आपको जैसे अपना बैग चेक करते हैं ना, वैसे ही चेक कर ले, चेकलिस्ट बना ले। ऐसे भी नहीं है कि माइंड में कुछ वर्क कर रहे हो, यू आर द प्रोफेशनल पर्सन। एक लिस्ट बनाओ, चेकलिस्ट टिक करते जाओ, दिस दिस दिस। और एक पोर्टफोलियो अच्छा सा फाइल का वो बाय कर लो, परचेज कर लो और अपने पास में रखो। पासपोर्ट साइज फोटो यस आपको रखनी है, और एक डिजिटल फोटो जो कि मैक्सिमम टाइम टाइम पे तो अब डिजिटल होता है, तो वो भी रखनी है। इवन आप चैट जीपीटी से अपनी प्रोफेशनल फोटो बना सकते हो और अपने नियर बाय जो भी फोटो प्रिंटिंग वाली प्लेसेस है वहां पे जाके प्रिंट करवा सकते हो इजीली। ये आपकी बेसिक डिटेल के बारे में मैं बात कर ही चुका हूं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं। और ये ध्यान रखना, बस एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये लिख लेना चाहे, ईमेल आईडी और ये पूरा फॉर्म जो भी है, ये एक बार फिल करने के बाद में एडिट नहीं होगा। इट इज़ एन नॉन एडिटेबल फॉर्म। सिर्फ एक सीवी अपडेट का ऑप्शन लेटर ऑन कभी कभी आईसीएमआई दे देता है, वो मिलेगा। सबसे पहले क्या काम करना है, देखो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इस फॉर्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ईमेल आईडी से रिलेटेड। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कई की ईमेल आईडी होती है, राहुल रॉक्स @gmail.com। ये नहीं चलेगा। इट शुड बी cma.rahul@gmail.com। जस्ट लाइक मेरी ईमेल आईडी है cma@gmail.com। तो ये प्रोफेशनल है। सो मैं तो आपको क्या रिकमेंड करने वाला हूँ, आप एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर लो। सर क्या मेरी आईसीएमआई रिकॉर्ड में अलग थी और अब मैं अपडेट कर सकता हूँ इस फॉर्म में? यस, यू कैन अपडेट। और अपडेट ऐसा करो, एक प्रोफेशनल जो है वो होनी चाहिए, तो वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी रखो। न्यू ईमेल आईडी बनाओ, जीमेल पे ही होनी चाहिए, वो बनाओ और उसको अपडेट कर दो। सीएमए अक्षय सेन अपने नेम के साथ सीएमए लगा लो अगर आपको मिल रहा है तो, फुल नेम के साथ सीएमए लगा लो आपको मिल रहा है तो। वो नहीं मिल रहा है तो फिर आप और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, अपनी डीओबी ऐड ऑन कर सकते हैं, या कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी मिल जाए। और मैं आपको लाइफ लॉन्ग यही लेसन बोलूंगा कि उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को जो है ना, उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को आप लाइफ लॉन्ग सिर्फ प्रोफेशनल वर्क्स के लिए ही रखना, और किसी वर्क के लिए यूज मत करना। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। और किसी वर्क के लिए यूज मत करना, तो ईमेल आईडी आपको न्यू क्रिएट करनी है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मार्क्स, ग्रुप 3 के मार्क्स, ग्रुप 4 के मार्क्स सेपरेटली प्रिपेयर रखने, अटेम्प्ट्स प्रिपेयर रखने। किसी को एग्जैक्ट याद नहीं है सर मेरे तो बहुत सारे अटेम्प्ट या मैंने बहुत ईयर पहले दिया था, तो अप्रोक्सीमेट अटेम्प्ट भी चलेंगे, बट परसेंटेज एग्जैक्ट होने चाहिए। परसेंटेज एग्जैक्ट होने चाहिए, उसके अंदर अप्रोक्सीमेट नहीं चलेगा। अटेम्प्ट का मीनिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, वी ऑलरेडी टॉक्ड। जैसे सपोज करिए एग्जाम सेनेरियो देखिए, यहाँ पर दो सेनेरियो यू कैन सी ओवर हियर। कि फर्स्ट सेनेरियो में आपने दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करा था पहले, और आप अटेम्प्ट ही नहीं, अपीयर ही नहीं हुए, तो नॉट एन अटेम्प्ट, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। बट आप अपीयर हो गए, ठीक है, और रिजल्ट आ गया, ये एक्चुअल अटेम्प्ट होता है। तो एब्सेंट रहना इज नॉट एन अटेम्प्ट, इसको ध्यान रखिएगा। अटेम्प्ट इक्वल्स टू एग्जामिनेशन एक्चुअली अपियर्ड। तो ये आपको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं आईसीएमआई की एक रूल बुक है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, आई विल शेयर दैट एज वेल।
सो उसमें भी आप ये सब चीजें पढ़ सकते हैं, रूल्स में लिखा हुआ है। एकेडमिक प्रोफेशनल, ये भी हमने बात कर ली, अगर किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, बट एक क्वेश्चन आता है, सर मैं एमकॉम कर रहा हूं, शुड आई मेंशन इट? नो, अपियरिंग एग्जाम्स को मेंशन मत करो। क्यों ना करूं, रीजन क्या है? सपोज यू आर गोइंग इन टू द कैंपस प्लेसमेंट एंड वो उनको दिख रहा है कि यू आर परस्यूइंग सम ऑफ द एग्जाम्स, उन्हें क्या लगेगा, आप अभी सिलेक्शन के जस्ट थोड़े टाइम बाद एग्जाम्स के लिए ऑफ मांगने वाले हो। वो कंपनी सोचेगी कि ये तो ऑफ मांगेगा, ऐसे कैंडिडेट को लेके क्या करे, किसी दूसरे कैंडिडेट को ले लेते जो ऑफ ना मांगे एटलीस्ट। तो कंपनीज इस तरीके से सोचेगी, दे थिंक लाइक दैट। तो अपियरिंग एग्जाम्स को छोड़ दे, ना बताए, बाद में मिल जाएगी सिलेक्शन के बाद में छुट्टी, बट अभी ना बताए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस हम बात कर चुके हैं दोनों का। अगर आपने ओनली आर्टिकलशिप करी है तो ट्रेनिंग सेक्शन में दिखाए, अगर आपने वर्क भी करा है तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर दिखाना है। उसकी ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ एग्जैक्ट ले ले। कुछ वर्क्स भूल गए हैं आप, तो उनसे बात करें, उनके पास जाए अगर आपके रिलेशन एम्प्लॉयर के साथ अच्छे हैं, और उनसे बात करके जो है आप एग्जैक्टली उन वर्क्स को थोड़ा ब्रश अप कर ले जा करके। प्लेसमेंट फॉर्म में क्या क्या आएगा ये रिपीट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सभी चीजें आएगी। नो मिसमैच, नो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कंसिस्टेंसी इज क्रिटिकल, इसका ध्यान रखना है। मींस आपका रिकॉर्ड जो आप यहाँ फिल कर रहे हैं उसमें और आईसीएमआई रिकॉर्ड्स में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी कि सर आई मैरिड रिसेंटली, उसकी शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, सर मैरिज के बाद में मेरा नेम चेंज हो गया है, तो मैं क्या करूँ? तो आपको आपका ओरिजिनल नेम ही यूज करना है जो आईसीएमआई रिकॉर्ड्स में चल रहा है, न्यू नेम यूज नहीं करना है। इसका ध्यान रखिए, ये मैरिड वुमेन्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली। कंपनी किस बेसिस पर सिलेक्शन करती है, शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया क्या होते हैं? ऑब्वियसली सीएमए क्वालिफिकेशन तो है, कुछ कंपनीज परसेंटेज का क्राइटेरिया रखती है, लाइक 55% इन सीएमए। अच्छा सर, ग्रेजुएशन के परसेंटेज मैटर करते हैं क्या? यस, ग्रेजुएशन परसेंटेज ऑल्सो मैटर्स। ग्रेजुएशन में सम ऑफ द कंपनी आस्क फॉर 60%, तो 60% होने चाहिए, उस वो भी मैटर करते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत मैटर करते हैं, अपने जूनियर्स को बताया करो। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो बिना प्रिपरेशन एग्जाम देते हैं और उनके अटेम्प्ट लग जाते हैं, उन्हें समझाया करें। वर्क एक्सपीरियंस, आपका आर्टिकलशिप का या अदर एक्सपीरियंस, इसके बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकलशिप वर्क को शोकेस कैसे करना है, वी विल डिस्कस अबाउट इट सीवी वाले सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में आने वाला ही, उसमें मैं बताऊंगा। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास में अभी 4 to 5 डेज है सीवी प्रिपेयर करके अपलोड करने के। 1 to 1 आपका सीवीज में चेक करूंगा, आपके साथ मिल करके हम वर्कआउट करेंगे और फिर देन अपलोड करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर पीएसयू में एप्लीकेबल होता है। किसी की एज ज़्यादा हो गई, अबाउट 28 से ऊपर वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है पीएसयू में, बट नॉन पीएसयू कंपनी इसके ऊपर भी ले लेती है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए होता है। तो बट पीएसयू में एज इज द क्राइटेरिया, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसमें भी रिलैक्सेशन होता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लोकेशन रिक्वायरमेंट कंपनी की होती है, मीन्स कंपनी दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करती है। कई बार ऐसे भी होता है, जस्ट लाइक आई एम फ्रॉम दी जयपुर, जयपुर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं करा किसी कंपनी ने, वो सारे क्राइटेरिया पूरा कर रहा था, क्यों नहीं करा? वो कंपनी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मुझे तो दिल्ली का ही पर्सन चाहिए, तो फिर वो भी शॉर्टलिस्टिंग में कई बार इम्पैक्ट कर देता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब उनको पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए कैंडिडेट चाहिए और वो कैंडिडेट ऑलरेडी सीवी के अंदर वो एरिया में वर्क कर रखा है, तो भी उसकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, और कंपनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो कि डिस्क्लोज नहीं होते हैं। मैं आपको शॉर्टलिस्टिंग के सिंपल सिंपल क्राइटेरियाज बता दूं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है ना शॉर्टलिस्टिंग का, वो होते हैं अटेम्प्ट, रैंक, अकेडमिक्स मतलब आपके ग्रेजुएशन परसेंटेज एंड ऑल। ये आपके सबसे बड़े क्राइटेरिया कैंपस में, ऑफ कैंपस में नहीं, कैंपस के अंदर। कैंपस के अंदर ये आपके क्राइटेरियाज है, इसी के बेस पर होती है, कुछ रैंडम शॉर्टलिस्टिंग भी होती है। मेंबरशिप डिटेल, यस, ओके, आई विल डिस्कस। इवेल्युएटिंग द अपॉर्चुनिटी, अब आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिलती है सीएमएस को जनरली, दीज आर द एरियाज। फाइनेंस प्रोफाइल में आपको जॉब मिल सकती है, आप में से अगर किसी को जाना है फाइनेंस में तो सबसे ज़्यादा यही मिलेगी। कॉस्टिंग प्रोफाइल में मिलेगी। एफपी एंड ए अच्छा है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि P2P एंड R2R को अवॉइड करना, अगर आपके पास में ऑप्शन है तो इनको अवॉइड करना है। और एफपी एंड ए इज ए गुड प्रोफाइल, अगर आपको मिलती है तो यहाँ पर जा सकते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। टैक्सेशन प्रोफाइल मिल सकती है, टैक्सेशन में स्पेसिफिकली जीएसटी ज़्यादा मिलता है, इसलिए
ऑडिट, इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल भी मिलती है, काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं जो कि इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल में भी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीएफआर वाला जो कंटेंट होता है ना, वो वाला वर्क करने को मिलता है इसके अंदर। कमर्शियल्स में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट, कमर्शियल में क्या होता है पता है आपको? आपको डीलिंग करनी पड़ती है। डीलिंग मीन्स आपको कंपनी के लिए कुछ परचेज करना है, कंपनी के लिए मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना है, तो डीलर्स के साथ बात करना, मीटिंग्स करना, ये वाले काम कमर्शियल डिपार्टमेंट्स के होते हैं। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबसे फर्स्ट एरिया तो ये है, सेकंड एरिया ये है, थर्ड एरिया, फोर्थ एरिया ये है, फिफ्थ एरिया ये है, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, ये एरियाज है जो प्रेफरेंस वाइज आपको रखने चाहिए। अब आपको, सर मुझे प्लेसमेंट कहाँ लेना चाहिए, मुझे कैंपस प्लेसमेंट लगने के कितने चांसेस है? देखो ये तो कोई भी नहीं कह सकता। मैं टू बी वेरी फ्रैंक बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि आप इस बैच में है तो कैंपस लग ही जाएगा। मैं आपको एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिससे आप इंटरव्यू दे सकते हैं किसी भी कंपनी में जाकर के। कैंपस में किसी कंपनी का नेम लोगे, मुझे बताओगे, मैं ये बता सकता हूँ कि ये कंपनी ये पूछेगी, ऐसा होता है। अब जब आप क्लासेस में पढ़ते हैं मेरे साथ में, तो मैं ये पढ़ा दिया, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया, बट एट द एंड यू नीड टू राइट इन टू द एग्जामिनेशन। इसी तरीके से ये है कि जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं करेंगे, और आई एम श्योर कि लास्ट डे तक आपकी कम्युनिकेशन फार फार बेटर हो चुकी होगी, बट इसके लिए रेगुलरिटी मेंटेन करना जरूरी। अभी एएसटीपी चालू होते ही कई सारे कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, सर मैं तो बहुत थक गया हूँ, एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। बट आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जस्ट 2 मंथ्स की तो बात है यार। जस्ट हार्डवर्क फॉर द 2 मंथ्स, उसके बाद में रिलैक्स कर लेना अच्छी जॉब पाने के बाद में। लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फेज पे खड़े हैं आप। ये सोचिए कि ये सारा जितनी भी स्टडी, जितना भी हार्डवर्क, डे नाइट जो भी पढ़ा है, वो इसी डे के लिए पढ़ा था। तो ये वो टाइम है जिसमें हार्डवर्क करने की जरूरत है। तो सारा सब कुछ, अभी आपको रिलैक्स लग रहा होगा, डिग्री मिल गई बस सब कुछ हो गया। आज के टाइम पे रिसेशन है मार्केट में, जॉब मार्केट में रिसेशन है। तो इस जॉब मार्केट के रिसेशन को अगर ठीक करना है, इसमें जॉब पानी है, तो स्किल्स को एनहांस करना शुरू करो। कम्युनिकेशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं आपको बार बार बता दूं, नॉलेज इज सेकेंडरी इंटरव्यूज में, कम्युनिकेशन इज प्राइमरी। अगर कम्युनिकेशन नहीं है ना, तो आपके पास कितनी नॉलेज हो, यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर इट। तो ये सारे सेकेंडरी अदर फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर जो है कंपनीज आपको अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, आप एप्लीकेशन लगाएंगे, यहाँ से फॉर्म फिल करेंगे, कंपनी स्क्रीनिंग करेगी, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी, फिर कंपनी एक आपको पीपीटी भेजेगी मेल के अंदर। देन इंटरव्यू प्रोसेस होगा, इंटरव्यू प्रोसेस में डिटेल में आपको बाद में सेशन लूंगा। फिर सिलेक्शन होता है। ये तो मैंने आपको ऊपर से बताया ब्रॉडली। ये हर टॉपिक पे मैं पर्टिकुलरली सेशन आगे रखने वाला हूँ आपका, तो वहां भी लेंगे। और इस बार ट्राई करेंगे, कुछ वैकेंसीज मार्केट में आ रखी है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी से किसी पर्सन को बुला करके आपको उससे गाइडेंस दे, और स्पेसिफिकली ऑफ कैंपस, क्योंकि मेरा फोकस ऑफ कैंपस पे बहुत ज़्यादा है। 4200 जो है बहुत लार्ज नंबर है, तो हर कोई उसमें उम्मीद ना रखे। इसीलिए जो ये अभी जो आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी की वैकेंसी आ रही है, इसमें एप्टीट्यूड भी आएगा। आपने देखा टेस्ट का कंटेंट, एप्टीट्यूड पूछा है। तो वी विल कीप दी एप्टीट्यूड सेशंस एज वेल। ये एड ऑन है कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड सेशन तो आपको ऑफ कैंपस में भी हेल्प मिलेगी, तो ये वाले सेशन भी हम इंक्लूड करेंगे। फाइनल चेकलिस्ट, आपको फॉर्म फिल करते समय ये चीज़ें देख लेनी है, ये सब कुछ आपके पास में रेडी होना चाहिए। ये सब कुछ रेडी है, देन यू कैन स्टार्ट योर फॉर्म फिलिंग। उसके बाद में यू कैन फिल योर फॉर्म, और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत मत करना, 10 टाइम्स चेक करना। नई ईमेल आईडी बनाओ, नई ईमेल आईडी प्रोफेशनल वर्क के लिए रखो, और उसी पे मेल आएंगे। शॉर्टलिस्टिंग मेल भी उसी पे आएंगे, सिलेक्शन मेल भी उसी पे आएंगे, कहीं भी अप्लाई करो तो भी उसी से करो। सर सिलेबस के बाद एटीट्यूड तो आता ही नहीं, कैसे प्रिपेयर करूं, समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। राम, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। कॉमन मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स करते हैं वो आपके सामने है। इनकरेक्ट मार्क्स आप बताते हैं, कई लोग सोचते हैं कोई चेक, कौन ही चेक कर रहा है, थोड़े से बता दो मार्क्स। मैंने आपको बताया ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर मिस्टेक मिल गई, देयर वाज वन स्टूडेंट जिसने अपनी डिटेल्स गलत बताई थी, गलत फिल करी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसको आगे इंटरव्यू ही नहीं लिया। पीएसयू 20 लाख का पैकेज, भारत पेट्रोलियम, इंटरव्यू ही नहीं लिया था। इनकरेक्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताते हैं, आईसीएमआई के डेटाबेस से चेक होता है। तो इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स मत बताइए, ये ध्यान रखिए। आईसीएमआई अभी तक तो ज़्यादा चेक नहीं करता था,
बट अब और ज़्यादा अटेम्प्ट्स को चेक करेगा। सर राइटिंग टेस्ट कैसे प्रिपेयर करें? डोंट, नो नीड टू वरी, उसके लिए सेशन होगा, आपको कुछ नहीं करना है। रॉन्ग पासिंग ईयर्स बताना कि मेरे अटेम्प्ट्स कम दिखेंगे, ये काफ़ी लोग करते हैं। पर्सनल डिटेल्स फिल नहीं करते सही से। इन्फ्लेटेड एक्सपीरियंस दिखा देते हैं, मतलब 3 ईयर 4 ईयर का। 3 4 ईयर के एक्सपीरियंस बता तो दिया, बट जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई। वो 3 4 ईयर का मान के आपसे क्वेश्चन भी फिर उस लेवल के पूछेंगे। फिर आपको आएंगे नहीं, फिर आप सोचेंगे अरे ये कैसे हो गया। और रिज्यूम और फॉर्म में मिसमैच नहीं होना चाहिए, बट ये हो तो भी इतना नहीं है, मतलब क्योंकि रिज्यूमे विल नॉट बी मैच्ड। सो ये वाला पॉइंट इतना एप्लीकेबल नहीं है। यू कैन स्टिल अपडेट, मतलब आप अपलोड करने के बाद भी रिज्यूमे इंटरव्यू के डे तक अपडेट कर सकते हैं। जॉब रोल को कैसे क्रैक करें, उसको कैसे अंडरस्टैंड करें, मैं आपको जेडीज के साथ में बताऊंगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ में कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कैसे करें। और इस बार हम और एफर्ट और चीजें करेंगे, मतलब नॉर्मल से ज्यादा एफर्ट्स मैं और मेरी टीम डालेंगे, क्योंकि इस बार नंबर्स बहुत ज्यादा है। तो नंबर ज्यादा होने की वजह से मिल करके वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क करना है, आप जितने जीडी, हम जीडी की प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे हम उतने ज्यादा जीडी लेंगे। नॉर्मली हम 15 to 20 लेते हैं, अगर आप 30 देना चाहेंगे 30 लेंगे। बट आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ ये इस बार जो रिजल्ट है इजी नहीं है। तो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस हम दोनों के लिए रेडी रहेंगे। कैंपस में लग जाए तो अच्छा है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का भी नहीं लगेगा, लगेगा। बट बाय चांस नहीं लगा तो सेकंड प्लान होना चाहिए। देर आर सर्टेन वैकेंसी जो आज के टाइम पर आ रही है। और उसके अलावा जो है, मैं खुद वैकेंसीज पर्सनली आपके साथ शेयर करूंगा, हम एक ग्रुप बनाएंगे अभी लेटर ऑन। वो क्लोज्ड ग्रुप में ही वो वैकेंसी आएगी। ऑफलाइन सेशन हम बात कर चुके हैं, वेनेसडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वेनेसडे या थर्सडे, इन दोनों डे में से। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, लास्ट मिनट सबमिशन, ये चीजें तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, आपको नहीं करनी है। तो ये पिलर्स है जिनका ध्यान रखना है आपको। एक्यूरेसी, एलिजिबिलिटी, मतलब वही अटेम्प्ट्स एंड ऑल, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटेजी एंड प्रोफेशनलिज्म। एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर किसी के ज्यादा ही है प्रियंका जी, तो आप अप्रोक्सीमेट फिल कर दीजिए, क्योंकि आपके अगर ज़्यादा अटेम्प्ट्स है तो फिर आप इसको फिल करिए। और आप एक अप्रोक्सीमेट अटेम्प्ट फिल कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी फॉर्म फिल के बारे में। अब हम बात करते हैं Q&A सेशन की। आप लोगों का फेवरेट सेशन। सर अब मेरा क्वेश्चन है तो लेटेस्ट टेक दैट क्वेश्चंस। आपके डाउट्स अब आप पूछ सकते हैं। फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है आपको नहीं आ रही है, सीवी पर बात नहीं कर रहे हम, सीवी का सेपरेट सेशन जो अगला सेशन होगा उसमें मैं बात करूंगा। अभी आपके जितने भी डाउट्स है यू कैन आस्क। प्रांजल ने एक डाउट पूछा है, सर एग्जाम्पशन में 50 मार्क्स काउंट करने हैं कि एक्चुअल मार्क्स? एज आई गॉट 69 इन आईडीटी इन प्रीवियस अटेम्प्ट एंड क्लियर्ड ग्रुप 4 इन दिस अटेम्प्ट। 50 मार्क्स काउंट करने हैं प्रांजल, ये आईसीएमआई की प्लेसमेंट की रूल बुक में लिखा हुआ है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, उसको 50 के 69 भी ले लेते हैं एक्चुअल में, और मैं बताऊं तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो आपके 69 आए थे। तो सीवी के अंदर अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ लेगा, ऐसा क्यों करा ये क्यों करा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट एज पर रूल्स अगर आप पूछे तो 50 लेते हैं। 69 पे भी हार्ड एंड फास्ट एप्लीकेबल रूल नहीं है। सर ग्रेजुएशन अंडर गोइंग है सो सिलेक्शन में इम्पैक्ट करेगा क्या, प्लेसमेंट में? नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स लास्ट अटेम्प्ट से आजकल, काफ़ी सारे लोग जल्दी सीएमए कर लेते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो उनका सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सर कैंपस प्लेसमेंट में कितने परसेंटेज अब नहीं बता सकता, क्योंकि 4000 का परसेंटेज करूंगा 10% भी तो 400 आएगा। मुझे लगता है 10% सेलेक्ट होंगे इस बार सारे रीजंस मिला करके। कैंपस प्लेसमेंट 20 मान लो, 20 तो मुझे नहीं लगता होगा, मैं पहले बता दूं। और मैं आपको एक बात ध्यान रखना, जितने भी कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं, मैं आपको ऑनेस्टली और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं ऐसे कोई बटरिंग करके या आपको झूठा दिलासा देके वो नहीं करूंगा। हम एक्चुअलिटी पे रहते हैं, हम प्रोफेशनल है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। 10% सिलेक्शन के चांसेस है। 10% मीन्स 400 to 450, चारों रीजन मना मिला करके कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। इट मे गो अप टू दी 600, बट उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएंगे। उसमें आपका नंबर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप ऑफ कैंपस जॉब देख सकते हैं। आज ही मैंने लास्ट अटेम्प्ट का सर्वे कराया था टीम से कि लास्ट अटेम्प्ट वाले जो भी बच्चे थे उनका क्या है। तो एक दो बच्चे छोड़ के बाकी सब प्लेस हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि मार्केट में जॉब है ही नहीं, बिल्कुल।
ये तो नहीं है। हाँ, लेकिन 4 to 6 months लगते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। बट उसके लिए पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग, कंटेंट स्ट्रांग। तो कंपनी रिजेक्ट करेगी कैसे तुमको? 10 बार सोचेगी रिजेक्ट करने से पहले। सर मैंने, मेरे अटेम्प्ट लगे तो उस गैप पीरियड में मैंने कहीं जॉब नहीं किया है, तो क्या उस पीरियड का डमी ले सकते हैं क्या? अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आप उसे जस्टिफाई कर पाओ, तो आप कर सकते हो। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ज़्यादा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने कहीं वर्क करा है, तो मैं ऑफिशियली इसका आंसर नहीं दे सकता। बट आप खुद अरेंज कर ले, और ये वीडियो तो वैसे भी यूट्यूब पर जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं यूं कहूंगा कि यस यू कैन डू, बट ऑन रिस्क पर, और उस वर्क को जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, तो यू नीड टू जस्टिफाई दैट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एएसटीपी के कितने दिन गैप में कॉन्वोकेशन? लास्ट डे पर ही होता है, एएसटीपी में ही कॉन्वोकेशन होता है। तो एएसटीपी का जो लास्ट डे होगा ना, उसमें कॉन्वोकेशन होगा। और एआईआर होल्डर्स का एक कैलकाटा में भी होता है। बट नॉर्मल पास आउट्स का जो है आपका, जहां भी स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता हर जगह होता है कि नहीं होता, जयपुर में तो होता है, लास्ट डे पर होता है। बाकी आप आपके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनसे पता करिएगा। एएसटीपी अप्रोक्स कब से स्टार्ट होगा? आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर। सितंबर फर्स्ट, अगस्त में तो स्टार्ट नहीं होगा। या तो अगस्त बिल्कुल एंड में होगा, और मुझे नहीं लगता अगस्त में होगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर। कॉन्वोकेशन में सूट नहीं, नॉट नेसेसरी, क्योंकि सूट आप सोचिए उसके ऊपर से आपको गाउन भी देते हैं, तो बल्कि हो जाता है। यस, आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, और सूट अगर आप प्रेफर करते हैं तो दैट्स ओके। Sir, in the form, do we have to upload the articleship document again? And in the interview, do they ask the document or articleship in hard copy? फॉर्म के अंदर कोई आर्टिकलशिप का डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं करना होगा, जो आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। वहां पर आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं पीएसयू के अंदर, आर्टिकलशिप का प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस मांग सकते हैं। तो वहां पर हार्ड कॉपी मांग सकते हैं। सर मेरा रजिस्ट्रेशन कोलकाता चैप्टर से है, मैं जयपुर से एएसटीपी करना चाहता हूँ एंड दिल्ली में कैंपस। यस, अलाउड है राम, इट इज अलाउड। एएसटीपी फॉर्मेट में जाना, इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स रिकमेंडेड। क्योंकि अब नाउ यू आर प्रोफेशनल, सपोज करिए कि हम खुद ही हमारे प्रोफेशनल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम खुद प्रोफेशनल नहीं लगेंगे, तो कैसे ग्रो करेगा प्रोफेशन? तो 2 to 3 ड्रेसेस, 4 ड्रेसेस आपके पास प्रोफेशनल होती है, एटलीस्ट शर्ट का यूज करें। टी शर्ट्स भी ऐसे हो तो पोलो कॉलर वाले टी शर्ट्स होने चाहिए, राउंड नेक नहीं होने चाहिए। तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, उनका ध्यान रखें। सर मैं इंटर में, प्रियव्रता पूछ रहे हैं सर, मैं इंटर में, अच्छा आप लोगों की सिटी कौन कौन सी एक बार मुझे बताना, तब तक चैट में मैं पढ़ रहा हूँ। सर मैं इंटर में सिंगल ग्रुप एग्जाम दिया था और क्लियर किया था, उसमें अटेम्प्ट इसी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे? अगर सिंगल ग्रुप एग्जाम दे के पास हो गए थे ना, तो सिंगल अटेम्प्ट काउंट होगा। फॉर्मल, नॉर्मल फॉर्मल चल जाएगा। अगर आपके फ्रेंड्स बोले ना नहीं पहनते, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा पहनो, आपकी हैबिट बनेगी। और आप जब इंटरव्यूज में जाओगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा। और अपने जो भी क्लोथ्स है, कपड़े हैं, सूट है, वो थोड़े टाइम के बाद में, जब भी आपका मेन प्लेसमेंट हो उसके 15 डेज पहले तक रेडी कर लेना। सर किस कैंपस में जॉब की अपॉर्चुनिटी, ये कोई फिक्स नहीं है, कभी कहाँ का कैंपस अच्छा हो जाता है, कभी दिल्ली अच्छा हो जाता है, कभी मुंबई हो जाता है, कभी कैलकाटा, कभी चेन्नई, तो हर एक लोकेशन का अपना अलग अलग है। इट्स नॉट फिक्स्ड। अच्छा, कल से जो सेशन हमारे होंगे वो सीएमए कार्ट ऐप के ऊपर होंगे। सीएमए कार्ट ऐप पर जो भी क्लास होगी आपकी, उसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। और जो लाइव क्लास है वो आप मोबाइल पे भी ले सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप में भी ले सकते हैं, दोनों जगह चलेगी। दिल्ली से हैं प्रियंका, बिहार से, भुवनेश्वर से हैं, मुंबई, संभाजी नगर महाराष्ट्र, दुर्गपुर, खगड़िया बिहार, मुंबई से हैं, दिल्ली, जयपुर से, रामगढ़ से, झारखंड, कोटा से। सर मैं जिस फर्म कंपनी में काम किया वहां से मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लिया, मुझे अब वो एक्सपीरियंस सीवी में शो करना चाहिए। रजत कुछ तो लिया होगा, T1 T5 T4। अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या करो कि वो, उसको जो भी ट्रेनिंग का प्रूफ है उसके अंदर एड ऑन दिखा दो। मुंबई, जयपुर। हाउ मच कॉस्ट विल बी योर सेशन? आई थिंक ये तो अलग थिंग है, ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड, आई थिंक इट्स 10,000, 7,000 एंड 6,000।
7 on 6, 7,000 इज ऑनलाइन लाइव सेशन, 6,000 ओनली रिकॉर्डेड। बट जो भी है, मैं आपको जो भी यहाँ भी नहीं आ सकते वो ऑनलाइन लाइव लेना। उसमें मॉक इंटरव्यू लाइव आ जाएंगे, जीडीज लाइव आ जाएंगे। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नाथ द्वारा से है, ओके, जय श्रीनाथ जी, प्रांजल। हम जरूर वहां पर आएंगे तो आपसे मिलेंगे। रामगढ़ झारखंड से, कोलकाता से। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को यस रिकॉर्डिंग मिलेगी कल से, जो भी सेशन होगा उन सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ बट हैव कम टू जयपुर फॉर योर, ओके दैट्स गुड। वर्णिका, हम बहुत जल्द मिलेंगे। मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूंगा, और कॉल है ऑफलाइन वाला, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन आइए तो हम इंटरेक्शन और कर पाए। और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफलाइन में आने चाहिए। यस, आई थिंक दिल्ली में भी रहती है, सैमसंग के नेम से जो भी है वो। आदित्य ऑफलाइन है, ओके, गुड। लास्ट डेट ऑफ एएसटीपी फॉर्म फिलअप 17 अगस्त, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मैं केशव, मैंने अप्रोक्सीमेट बताइए, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअल में। आप ऑफिस नंबर पे कनेक्ट करेंगे ना तो वो आपको एक्चुअल दिखाएंगे। अगर ज़्यादा होगा तो दे विल गिव यू द रिफंड एज वेल, नॉट एन इशू। आप उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिए बस, दैट्स इट। क्योंकि मैं क्या, ये फीस प्रोफाइल देखता नहीं हूँ मैं तो, पर्टिकुलरली सेशन मैंने अप्रोक्सीमेट इसलिए बताया कि वो 6 7 ऐसे होगा। आप ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो शेयर करेंगे, या कहीं भी देख लीजिएगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपने एक्सेस पे करा होगा, नो नीड टू वरी, वी विल रिफंड यू। सर थोड़ा बुरा लगता है, रिलेटिव को सीएमए के बारे में पता नहीं है, सीए बोलना पड़ता है। एक काम करिए, कुछ सक्सेसफुल सीएमएस के एग्जाम्पल लीजिए जिनको सब जानते हैं, और उनके नेम्स उनको बताइए। आइडेंटिटी हमें बनानी पड़ेगी। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, सबको मार्केटिंग करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। फिर एक टाइम आएगा, उस टाइम पर जाकर के आपकी वैल्यू बढ़ेगी। रिज्यूम आपको नहीं, आज नहीं भेजना है। रिज्यूम आपको भेजना है 11th को, कल इवनिंग से, जब रिज्यूमे का सेशन हो जाएगा ना। क्योंकि अभी आप भेजेंगे फिर मैं कल कुछ और बता दिया, यू नीड टू चेंज अविनाश, तो वो अभी नहीं भेजना है, वो कल भेजना है आपको। तो होपफुली आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑफलाइन क्लास भी मैंने बता दी है, या तो वेनेसडे से या थर्सडे से होगी। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेजिएगा, काफी सारे लोगों को फीडबैक चाहिए होता है। तो आई विल से कि मैंने एक लिंक्डइन पे भी पोस्ट करा है, वहां पर जाकर के भी लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करें, उस पोस्ट पे बताएं, सो दैट हम और भी लोगों तक पहुंच पाए। और व्हाट, वन थिंग आई विल टेल यू, इट्स अ टीम वर्क। मैं हमेशा टीम वर्क पे बिलीव करता हूँ। हर एक पर्सन, हर एक टीम का एक्सपर्ट एरिया से होना चाहिए। मैं अकेला भी आपको ट्रेनिंग करा सकता हूँ, आप ले भी लेंगे। बट मैं ये बोलता हूँ कि हर पर्सन का एक एक्सपर्ट एरियाज होते हैं, उसी एक्सपर्ट से उसको डिलीवर करना चाहिए, ना कि सिंगल पर्सन से। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना वैल्यू रखता है, और आप फील भी करेंगे जब इन फ्यूचर सेशंस होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अच्छे चांसेस है आपके। यस, आई थिंक केशव यू विल गेट। प्लीज शेयर टेलीग्राम ग्रुप लिंक। आप चैनल पे जाइए, टेलीग्राम सीएमए अक्षय सेन, वहां पे मिल जाएगा आई थिंक आपको। और बाकी आप में से कोई कर दी। एसीसी और सीएफए, आई थिंक आपका इंटरेस्ट किस में है विशाल? यस, आज का सेशन यूट्यूब पर अपलोड होगा। आपका इंटरेस्ट किस में? अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आई थिंक सीएफए विल बी मोर बेटर, क्योंकि सीएमए के साथ में सीएफए बेटर होगा। एसीसीए तो क्या है कि सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स हो गई। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और 14 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है, वेरी गुड। राम, आपको तो श्योरली आपको जो है बेनिफिट रहेगा। कम्युनिकेशन, नो नीड टू वरी, आपका हो जाएगा ठीक। सर माय इंटरेस्ट इन फाइनेंस, सीएफए करिए। फाइनेंस में इंटरेस्ट है, सीएफए करिए, और अदर कोर्स भी मैं बताऊंगा। अभी ज्वाइन मत कर लेना, बाय द टाइम जब हमारे सेशंस होंगे तो मैं बताऊंगा। कम्युनिकेशन इशू, नो नीड टू वरी, ठीक हो जाएगा। अभी मधु मैम आपके सेशंस लेगी, प्रैक्टिस कराएंगे, आप ठीक कर लोगे। ऑफलाइन, एज आई बिलीव अटेंडिंग क्लास विल बी, यस ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिशियल ऑफलाइन अगर आप लेंगे। यू कैन कनेक्ट 1 to 1 विथ मी। आई एम करंटली अनेबल टू अरेंज सुटेबल पीजी अकोमोडेट, नियर बाय में बहुत पीजी है। आप ऑफिस में कनेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस नंबर पे वो आपको पीजी के सजेशन भी देखेंगे।
दे देंगे। पीजी बजट आई थिंक पर मंथ 8,000 to 10,000, एटलीस्ट 8,000 तो होता ही होगा। और वन थिंग डू वन थिंग, आप जयपुर आइए, जयपुर आके सजेस्ट करिए, सेम डे पीजी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि लिमिटेड है। और आई विल वेट, मैं आपके, खुद टीम वैसे हैंडल करती है, मैं टेलीग्राम पे पढ़ूंगा आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या रहे। जरूर से टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करिए सो दैट इट कैन रीच। एक्सेल, एसएपी, जीएसटी, आईटीआर नहीं, एडवांस नहीं सीखेंगे। एडवांस एक्सेल, एडवांस जीएसटी, इसमें तो बहुत एफर्ट्स और वो चाहिए। वो तो आप कंपनी में जाकर के सीखेंगे, जाकर के एडवांस लेवल पे नहीं। हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, वेदर इट इज ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। एसएपी तो बेसिक लेवल होगा, और बाकी को हम डिटेल में भी देखेंगे। बोथ ग्रुप टाइम टोटल चांस है क्या? बिल्कुल अविनाश, आपके चांस है। फर्स्ट अटेम्प्ट है, 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन भी है। आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा? एग्जम्पशन मार्क्स कितने होते हैं? 60 से अबव एग्जम्पशन होती। मुस्कान, एएसटीवी कब तक होगी सचिन? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर के चांसेस है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर द डे। होप यू, योर डाउट्स आर बीइंग क्लियर्ड। डर लग रहा है अटेम्प्ट से, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आप विद इन 6 मंथ्स देखना, आपको ऑफ कैंपस भी जॉब मिल जाएगी प्रियंका। सो टेंशन मत लीजिए, पहले खुद को रेडी करिए, खुद को रेडी बताइए, आप कंपनीज को दिखाइए। आई एम श्योर आई विल पर्सनली हेल्प यू कि आपका प्लेसमेंट लगे, बट पहले स्किल्स डेवलप कर लो। जब मुझे लगेगा ना यस यू आर रेडी, स्किल्स डेवलप्ड है, डिजर्विंग हो, आई विल पर्सनली रेफर यू। बट उसके लिए पहले स्किल डेवलप करके दिखाइए मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। डू शेयर योर फीडबैक्स ऑन द टेलीग्राम एज वेल एज लिंक्डइन। कल मिलते हैं आपसे। कल सीवी के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोरोली।